हमने देखा पूरे देश में वकीलों ने धरना प्रदर्शन भी किए। उस समय स्थिति क्या थी और इस संशोधन विधेयक की मुख्य बातें क्या थी जिसका विरोध हो रहा था? It was sort of a draconian law. और सर, आप लोग भारत सरकार के कानून मंत्री से में मिले हैं, आप लोगों ने अपनी कौन कौन सी बातें रखी है? क्योंकि कई बार बात होती है कि वकीलों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और जब ये संशोधन विधेयक लाया गया था 1961 में, इसको संशोधित करने की जरूरत क्यों पड़ी? थोड़ा विधिक परिषद ही करेगी। फिर जो है पावर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। अभी तक ऐसे पुराने कानून में कोई प्रोविजंस नहीं थे जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को डायरेक्शंस दे सके। अगर ये फीस इंक्रीज नहीं होती है तो उससे बार काउंसिल्स जो हैं, जो बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल्स हैं, इनको चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे पास नहीं होगी। जब आप एक्ट को अमेंड कर ही रहे हैं तो आप एक चैप्टर में एक लॉयर्स की प्रोटेक्शंस का और एक चैप्टर में उनकी वेलफेयर का भी डाल दीजिए। उसके लिए सेपरेट लेजिस्लेशन लाने की क्या जरूरत थी? ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें कहा कि आज की डेट में देयर इज नो प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन द पब्लिक डोमेन। केंद्र सरकार ने अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1961 में संशोधन करने की बात सामने रखी। 13 फरवरी 2025 को इस संबंध में पब्लिक के सुझाव भी आमंत्रित किए गए, लेकिन आपको हम बता दें कि पूरे देश भर के अधिवक्ता इस संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं। हालांकि अब केंद्र सरकार ने इस पर फिर से एक बार पुनर्विचार करने की बात रखी है, लेकिन फिलहाल हम हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के चेयरपर्सन हमारे साथ हैं। सर, आपसे पहला सवाल, जब इस संबंध में पूरे देश में चर्चा हो रही थी, हमने देखा पूरे देश में वकीलों ने धरना प्रदर्शन भी किए, उस समय स्थिति क्या थी और इस संशोधन विधेयक की मुख्य बातें क्या थी जिसका विरोध हो रहा था? मैम, इसमें सबसे पहले 13 फरवरी को 2025 को जब गवर्नमेंट ने ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की सजेशंस मांगी तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे विच वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ ड्रैकोनियन लॉ, तो दैट वाज अपोज्ड and the State Bar Council of Himachal Pradesh also was not in favor of those amendments. So for the first thing which we did is we invited objections from all the state bar associations so that their objections can be incorporated and submitted to the Bar Council of India. The members of the Bar Council were also requested to submit their objections, and a meeting was scheduled for 21st of February 2025. On 21st of February 2025, the General House of the Bar Council was called, and it was unanimously decided that we should form a coordination committee wherein some of the members of the Bar Council would be members and all the president of the state bar associations, they would be the member of that coordination committee, and a meeting was scheduled for 25th of February. In the meantime, Bar Council of India invited the Vice Chairman and the Chairman of the Bar Council of Himachal Pradesh and other state bar councils for discussion on this issue. On 22nd of February 2025, Government of India Ministry of Law and Justice issued a letter wherein they expressed that the proposed amendments against which they had sought the suggestions, those suggestions have been will be considered, and thereafter fresh suggestions would be called for, and thereafter this fresh suggestions would be called for from the stakeholders. So these and the withdraw in the sense those proposed amendments were withdrawn. So when that letter was issued, the meeting which we had scheduled for 25th of February was called off. For the reason that since the proposed amendments have been withdrawn, so there is no fun in going in for that meetings. On 28th or 29th, we came to know that some of our lawyers have met in Bilaspur and they are in the process that we want to oppose this amendment. So we again called a general house, and in that general house it was resolved that we should convey to them that these were proposed amendments and nothing has been done, and we should request them that they should not go on strike, and we should also seek a clarification from the Bar Council of India. So we immediately requested our member Bar Council of India in Bar Council of India that you get a clarification from Bar Council of India, and that letter also came to us in the evening of
on 1st of March. And 2nd of March, we circulated to all the bar presidents of the state that these are proposed amendments, these are nothing material, and they should refrain from any, there's nothing in the public domain which would say that there are any amendments. और देखिए इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला ये आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, फिर केंद्र सरकार से जो चिट्ठी आई थी उसका भी आपने जिक्र किया, लेकिन सवाल आपसे ये है, फिर आपके ही फ्रेटर्निटी के कुछ लोग हैं वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब तो सीधा है कि क्लैरिटी तो उन लोगों में भी नहीं है, तो उन लोगों तक क्लैरिटी जाए इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि केंद्र सरकार ने जब आप लोगों से सुझाव मांगे हैं तो आप लोगों ने सुझाव क्या दिए हैं? मैम, इसमें जो ये अनक्लैरिटी एक तरह से कह लें या क्लियर नहीं है पोजीशन, उसके बारे में कह लें, उसके लिए हमने जैसे ही ये हमें पता लगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ने स्ट्राइक की कॉल की है, तो मंडे को मैं, हमारे कुछ बार काउंसिल के और मेंबर्स, हम लोग इमीडिएटली जाके सेक्रेटरी लॉ से मिले, उनसे हमने डिस्कशन करा कि ये क्या सिचुएशन है, वेदर देयर आर एनी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। तो उन्होंने क्लियर किया कि जो अमेंडमेंट्स के ऊपर सजेशंस मांगी थी वो हमारे पास रिसीव हो गई हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे और उसके बाद दोबारा से सजेशंस जो हैं स्टेक होल्डर्स से मांगेंगे। ठीक है, अमित वैद्य जी हमारे साथ हैं। और सर, आप लोग भारत सरकार के कानून मंत्री से में मिले हैं, आप लोगों ने अपनी कौन कौन सी बातें रखी है? क्योंकि कई बार बात होती है कि वकीलों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और जब ये संशोधन विधेयक लाया गया था 1961 में, इसको संशोधित करने की जरूरत क्यों पड़ी? थोड़ा सा इन बिंदुओं पर भी बताइए। जी, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में फॉर्म में आया। 1961 के बाद इसमें बीच बीच में माइनर अमेंडमेंट्स होती रही हैं, लेकिन 1961, 1991 और 2025 के बीच में एक बहुत लंबा अंतराल रहा है। उस अंतराल के अनुसार वकालत के पेशे में कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो आज की डेट में हमारे लॉयर्स को महसूस हो रही हैं कि जिसकी हम बार बार सरकार से डिमांड करते भी रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा जो हमारा आज की डेट में जिसको हम कहते हैं नीड ऑफ द आवर है, वो है अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने मांग किया, वेलफेयर्स के ऊपर बात मांग की। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इस सारे को एब्रप्टली बनाया, ये बना। जो कानून बनाने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भारत सरकार ने फॉलो किया। किसी भी कानून को जब आप बनाते हैं, उसका एक प्रपोज ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में जाता है। प्रपोज डोमेन में जाने के बाद उसका ऑब्जेक्शंस या सजेशंस आते हैं। ये बिल अभी तक उसी स्टेज पे था। उस स्टेज के बाद जो भी आपके ऑब्जेक्शंस या सजेशंस आते हैं, उसको मिनिस्ट्री जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करके उसके साथ पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है। फिर उसकी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, देयर इज अ लेंथी प्रोसेस ऑफ इट। बट क्योंकि ये इस लेजिस्लेशन को इनैक्ट करने का जो ड्यूरेशन है, दैट इज ओनली फॉर द 9 डेज, 9 या 10 दिन ही चला है जिसमें सजेशंस आए हैं। और उन 10 सजेशंस, उन 10 दिनों के अंदर अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी मीटिंग बुला के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स ने, सारों ने बैठ के इसके एक एक पॉइंट के ऊपर जो प्रोविजंस हमारे एडवोकेट एक्ट या एडवोकेट प्रोफेशन के अगेंस्ट हैं, या जो बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के अगेंस्ट हैं, या जैसे कि ये मैडम हम आपको एक पूरा लिस्ट बताते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, ये जो लेटर है, ये देखिए, ये लेटर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 19/2/2025 को आफ्टर डिटेल डेलिब्रेशंस हमने एक एक पॉइंट के ऊपर जो है मिनिस्ट्री को अपना कंसर्न शो किया है कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन है। जैसे गवर्नमेंट के नॉमिनीज बीसीआई में नहीं आएंगे, ये इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें किसी भी प्रकार का सरकार का दखलंदाजी हमें नहीं चाहिए। दूसरा था रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स। फॉरेन लॉयर्स को रेगुलेट आज दिन तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती आई है, और उसको रेगुलेट करने के लिए वकीलों के हकों के लिए और वकीलों का क्या हित है वो वकीलों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो वो रेगुलेट अभी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर रही है, और हम नहीं चाहेंगे कि हाँ जी की सरकार, जिन्हें पूरा शायद सरकार को उतना आभास नहीं होगा कि लॉयर्स की ग्राउंड रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग जानते हैं क्योंकि हम वकीलों से बीच के चुने हुए नुमाइंदे हैं और वकीलों के बीच में रहते हैं। तो फॉरेन लॉयर्स का हिंदुस्तान में आना और उनका क्या इम्पैक्ट होगा
वो सारी चीज़ों को हमने स्ट्रांगली अपोज किया कि हम फॉरेन लॉयर्स को जो रेगुलेट करेगा, इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट, इसको रेगुलेट भारत की विधिक परिषद ही करेगी। फिर जो है पावर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। अभी तक ऐसे पुराने कानून में कोई भी ऐसी कोई प्रोविजंस नहीं थे जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को डायरेक्शंस दे सके। इसमें था, हमने उसको अपोज किया। सेकेंडली, एनरोलमेंट ऑफ फीस स्ट्रक्चर। आज से 2-2.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया। उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आया कि एक्ट में अंदर जो हमारी एनरोलमेंट फीस है वो 750 रुपया है। आप 750 रुपया ही लेंगे। अब 750 रुपया एक्ट 1991 में चल रहा है। 1991 से लेकर 2025 तक का इन्फ्लेशन रेट आप देख लीजिए, इंडेक्स कहाँ जा रहा है। दिस वाज आवर डिमांड कि इसको एज पर द प्राइस इंडेक्स इसको प्रॉपर किया जाए। एक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर ये फीस इंक्रीज नहीं होती है तो उससे बार काउंसिल्स जो हैं, जो बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल्स हैं, इनको चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे पास नहीं होगी। हमारे को कोई सरकार किसी मंत्रालय से या किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई फीस या कोई ग्रांट वगैरह को नहीं मिलती है। तो इस करके हमारा ये था कि इसमें हमारा जो है फीस को है इसे भी प्रपोज करके अमेंड किया जाए। फिर लीगल प्रैक्टिशनर्स और प्रैक्टिस ऑफ लॉ, ये 2 डेफिनेशन आई थी। इसमें उन लोगों को भी ऐड कर दिया गया जो दे आर द लॉ ग्रेजुएट्स लेकिन वो जॉब कर रहे हैं, उनको भी लीगल प्रोफेशनल और लॉ प्रैक्टिशनर्स की उसमें डाला। ये डिटेल है, इसके ऊपर हमने डिटेल ऑब्जेक्शन को हमने, ये भी हमारा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है। फिर सेक्शन 24B बोलता है कि अगर कोई लॉयर कन्विक्ट हो गया है जिसमें उसको 3 साल की सजा हुई है तो उसका हम लाइसेंस उसको रोल से निकाल देंगे। हमारी डिमांड ये रही है कि आप 3 साल नहीं, क्योंकि 3 साल बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस में भी हो रही है, तो उसको आप 7 साल कीजिए। एक इसमें ये था कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस भी उसका लाइसेंस वो खत्म कर दिया जाएगा। अनटिल और अनलेस आपका पूरा ट्रायल नहीं चलता और आपको पनिशमेंट नहीं मिलता है प्रॉपर कोर्ट से, तब तक आप उसको कैसे वो डिबार कर सकते। ये लॉ तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से टोटली अगेंस्ट है। सेकेंडली, फिर इन्होंने जो ये कहा है कि स्ट्राइक्स और बाइकआउट्स अगर रीजनेबल रीजंस की वजह से है तो उसको, अब रीजनेबल और अनरीजनेबल को कौन डिसाइड करेगा? दैट इज अथॉरिटी। बट इसमें तो ये लिखा है कि अगर आप स्ट्राइक या अब्सटेन भी करेंगे तब भी ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। हमने उसका अपोज किया है। सेकेंडली, ये आया है कि पावर टू गिव डायरेक्शंस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे को डायरेक्शंस दे सकती है, ये भी हमारी स्वायत्ता के अगेंस्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की पावर है, अभी बार काउंसिल अपनी ज़रूरत के अनुसार रूल्स बना लेती है। ये पावर भी हमारे से छीन ली गई थी कि उन्होंने कहा जी आप रेगुलेशन के। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें जो हमारा सबसे बड़ा बात था, जो आपने प्रश्न पूछा था कि इस पूरे एक्ट को अमेंड करने की क्या जरूरत है। अगर आप 12 जो हमारा 12वां डिमांड है, उस 12वें डिमांड में लिखा है ओमिशन ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एंड द वेलफेयर प्रोविजंस। जब आप एक्ट को अमेंड कर ही रहे हैं तो आप एक चैप्टर में एक लॉयर्स की प्रोटेक्शंस का और एक चैप्टर में उनकी वेलफेयर का भी डाल दीजिए। उसके लिए सेपरेट लेजिस्लेशन लाने की क्या ज़रूरत थी? दिस वाज आवर डिमांड, जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के ऊपर पूरा उनसे आश्वस्त थे कि ये लाएंगे, ये नहीं आए। तो ये भी हमने डिमांड की है। देखिए, लॉ मिनिस्टर से आपकी क्या बात हुई है, एक अंतिम सवाल रहेगा। और दूसरा, जो लोग अभी भी हड़ताल पर हैं, आपकी ही साथी लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें कहा कि आज की डेट में देयर इज़ नो प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन द पब्लिक डोमेन। हमने उसको विड्रॉ कर लिया है और वो हम कंसिडर करके दोबारा से जब डालेंगे तो पब्लिक, आप लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सजेशंस हम दोबारा से मांगेंगे, तब वो प्रोसेस चलेगा। और मेरी सारे वकील भाइयों से जो पूरे हिमाचल प्रदेश में हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली डोंट गो ऑन स्ट्राइक और अपना काम करिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं आपके हित को देखने के लिए, और कोई भी इस प्रकार की अमेंडमेंट्स जो हैं वो हम परमिट नहीं करेंगे एडवोकेट्स एक्ट में। और अगर कोई ऐसी फ्यूचर में भी कोई आती है तो हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं उसको लड़ने के लिए। और केंद्र सरकार की तरफ से जो ये अधिवक्ता संशोधन अधिनियम आया था, इसमें संशोधन करने की बात केंद्र सरकार ने कही थी। आपको बता दें कि जो संशोधन अधिनियम था ये 1961 का था, लेकिन फिलहाल हमने जब बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के चेयरपर्सन और सदस्य से बात की, उन्होंने हमें साफ शब्दों में ये बताया कि जो ये विधेयक है इसमें
वकीलों के कुछ क्षेत्राधिकारों का हनन हो रहा था। और साधारण शब्दों में हम ये कहें कि इसमें वकीलों के जो सर्वांगीण विकास है उसकी बात कहीं ना कहीं अनछुई रह गई थी। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।